Good morning, students. In this video, we are going to talk about Fayol's principles of management. Henry Fayol, he was a French mining engineer, executive author, and director of mines who developed general theory of business administration. He joined French mining company as an engineer, and he rose to the position of managing director. He contributed so many things in the field of business, in the field of industrial organization. He found that all the activities of industrial organization could be divided into 6 groups: technical, commercial, financial, security, accounting, and managerial. He was the first person who identified functions of management. They are planning, organizing, directing, and controlling. Okay. And he developed 14 principles of management. This is very important. And these 14 principles, they act as guidelines for manager. Okay, they give a path to proceed for a manager. For his contribution, he is known as father of general management. Okay, sometimes this question is asked, who is father of general management? So the answer is Fayol. So he is father of general management. Now we'll discuss one by one all the principles of management given by Fayol. So they are 14 principles. Remember, 14 principles he has given. The first principle is division of work. So according to division of work, according to this principle, whole work must be divided into small tasks or small jobs, and each job is assigned to a trained specialist, okay, who is competent to perform it. So फेयोल ने रिकमेंड किया कि जो भी एक काम है, जो वर्क है, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, it is to produce more and better work, and it makes task simpler. And while one person is repeating his performance, it will help to gain speed and accuracy and specialization in that work. Okay, and when the person gets specialization, so it is the most efficient way to human effort. In this slide, you may see that one picture I have taken, which is from a bank. Most of you have visited bank. So आपने बैंक में क्या देखा? बैंक में बहुत सारे काउंटर्स होते हैं. One counter is for deposits, acceptance of deposit. One counter is for one person is sitting to deal with loan. One person is to deal with the documents like checkbook, passbook. Okay, one counter is for withdrawal of money. Okay, so हर काम को छोटे, मतलब पूरे बैंकिंग ऑपरेशन को क्या किया गया, स्मॉल टास्क में, स्मॉल जॉब्स में डिवाइड किया गया, और उस स्मॉल जॉब को हर एक पर्सन को अलॉट कर दिया गया जो कि उसमें उसको करने के लिए कॉम्पिटेंट है. ओके, हु इज कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म दैट टास्क, और वो पर्सन बार बार उस काम को करता रहता है. एक और चीज़ यहाँ पर जॉब रोटेशन भी आती है कि कभी कभी अगर कोई एक पर्सन उस काम को अच्छे से करना सीख जाता है तो उसको हम दूसरा टास्क दे देते हैं. ओके, तो फिर वो क्या करता है, अगेन वो बार बार करते 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 उस दूसरे टास्क में भी स्पेशलाइज हो जाता है. सो ड्यू टू दिस प्रिंसिपल इट अप्लाइज टू बोथ. Coming to next slide, the principle applies to both for managerial as well as technical work. Okay,
इसी वजह से जितनी सारी बड़ी कंपनी है वहाँ पर अलग डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस अलग, मार्केटिंग अलग, प्रोडक्शन अलग, ह्यूमन रिसोर्सेस अलग, and all the department are headed by specialized person. Okay, but their target is one, to achieve the common goal of the organization. In this slide, positive effect of the principle and consequences of its violation is given. So positive effect क्या है? We follow division of work, it leads to specialization and it simplifies work and it increases efficiency. And if we don't follow the principle, what will be the consequences of violation? Waste of time, efforts due to change from one work to अनदर. हम एक बारी आज मैंने आपको काम दिया है बैंक में, सपोज मैंने बैंक का एग्जाम्पल लिया, आज आपका काम है एक्सेप्टेंस का. नेक्स्ट डे आफ्टर नेक्स्ट डे हम क्या कर रहे हैं, आपको दूसरा विड्रॉल का काम दे रहे हैं. तो उस चीज़ को समझने में हमें टाइम लगता है. सो ये क्या है, यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क हम फॉलो नहीं कर रहे हैं और हमें वेस्ट ऑफ टाइम होगा, वेस्ट ऑफ एफर्ट होगा. सो वन एग्जाम्पल आई हैव टेकन हियर. इट इज Radhika opens a jewelry showroom in Jaipur. After completing a course in jewelry designing, she has employed 11 persons in her showroom. For greater productivity, she divides the work into small tasks and each employee is trained to perform his or her specialized job. Suppose if you are given this question in your exam and you are asked which principle is you find here, so कौन सा प्रिंसिपल आप फाइंड आउट करते हो यहाँ पर? डिविजन ऑफ वर्क. वाई? कौन सी लाइन से आपने आइडेंटिफाई किया? ये जो ग्रीन में बोल्ड लिखा हुआ है, ग्रीन फॉन्ट्स में, कि फॉर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी शी डिवाइड्स द वर्क इनटू स्मॉल टास्क एंड ईच एम्प्लॉय इज ट्रेन्ड टू परफॉर्म हिज और हर स्पेशलाइज्ड जॉब. सो डिविजन ऑफ वर्क इज फॉलोड हियर. द नेक्स्ट, मैं डिस्कस कर रही थी अथॉरिटी के लिए. तो अथॉरिटी, अगर सपोज एक पर्सन है, एक सेल्स मैनेजर है, उसको हमने अथॉरिटी दे रखी है कि हमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ड्यूटी है, ही नीड्स टू सेल 200 यूनिट्स इन अ वीक. So for selling these 200 units in a week, he needs 20 executives to perform this task. Okay, responsibility is to sell 200 units in a week, and for this he needs 20 executives, 20 persons he need. So now only 11 is with him. 11 executives are there under him, and he needs 9 more. But the firm has not given authority to recruit those 9 persons. So can he perform his duty? No. Why? Because he needs only 20 and he has only 9. He cannot recruit. So how can he perform his duty? So there is not a proper balance between authority and responsibility. So for this, he is not able to perform. So this shows imbalance between authority and responsibility. Now positive and consequences, positive effect. So if authority and responsibility, they are in proper balance, so it prevents misuse of authority. It helps in fixing responsibility also. And what if they are not in proper balance? Means suppose sometime it is excess authority has been given and sometime responsibility is more than authority. So if authority is in excess, so subordinate cannot perform his duties because responsibility is more and authority is less. So this example, this sales manager's example I have given you. और अगर authority ज़्यादा हो रही है और responsibility कम है, तो subordinate के पास ज़्यादा authority होने से he may misuse it. Okay, so these are the consequences of violation. This one example I have taken here. Sales manager, he has to negotiate a deal with a buyer. Okay, she finds that if she can offer credit period, है ना, अगर हम उसको ये करते हैं कि हम उसको credit period 60 days का अगर हम देते हैं तो वो हमारा डील मिल जाएगी हमें. Okay, but
सपोज विच इज सपोज टू फेच द कंपनी, इससे क्या होगा, कंपनी को 50 करोड़ का नेट मार्जिन मिलेगा. नाउ कंपनी गिव्स पावर टू मैनेजर टू ऑफर अ क्रेडिट पीरियड ऑफ ओनली 40 days. Okay, see, 60 days if he offer credit period, he can clinch the deal and the net margin of profit for the company would be 50 crores. But he is only given a power to allow a credit period of 40 days. So there is an imbalance in authority and responsibility. So there is violation of this authority and responsibility principle. Now, the next, डिसिप्लिन. डिसिप्लिन का मतलब हम क्या जानते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना. ओके, तो जितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो करना ही डिसिप्लिन है. बट यहाँ पर अगर आप डिसिप्लिन देखिए तो इट इज़ दी, what is it? It is the obedience to organization rules and employment agreement which are necessary for the working of the organization. रूल तो फॉलो करना ही है. ओके, जो रूल्स कंपनी ने बनाए हैं वो तो फॉलो करना ही है, ऑर्गेनाइजेशनल रूल तो फॉलो करना ही है, हम सभी जानते हैं. बट वन मोर इम्पॉर्टेंट टर्म इज एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट. ओबीडियंस टू एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट. अभी ये एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट का क्या है कि सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं. मैनेजमेंट और लेबर यूनियन के बीच में डिसाइड हुआ, एक एग्रीमेंट बना कि वर्कर जो है वो कुछ एक्स्ट्रा आवर्स डिवोट करेंगे, ओके, विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट टू रिवाइव द कंपनी आउट ऑफ लॉस. कंपनी लॉस में चल रही थी, तो कंपनी के मैनेजर्स ने लेबर यूनियन से बात किया कि वर्कर्स को थोड़ा एडिशनल एफर्ट देना होगा, एडिशनल वर्किंग आवर्स डिवोट करने होंगे कंपनी को, बट विदाउट पेमेंट, विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट. ओके, सो ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ. अभी मैनेजमेंट ने ये बोला कि अगर ऐसा वो करते हैं तो मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया कि वो वेजेस इंक्रीज करेंगे जब उनका मिशन कंप्लीट हो जाएगा. मिशन मतलब जब वो लॉस से रिवाइव हो जाएंगे, अगर ऐसा करने से तो वो देंगे. सो डिसिप्लिन का यहाँ पर क्या मतलब है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों को अपने कमिटमेंट को, जो उन्होंने कमिटमेंट किया है उसको ऑनर करना होगा, उसने एक्सेप्ट करना होगा. अब अगर कंपनी, अभी जितने सारे वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं और उन्होंने बोला कि नहीं हमें तो अभी चाहिए, हमें तो अभी, हमने जितना एडिशनल काम किया, हमने जो एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स दिए हैं, मुझे अभी पेमेंट चाहिए, तो दिस इज इनडिसिप्लिन्ड. ओके, व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट ओबीडियंट टू द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट. ओके, सिमिलरली अगर कंपनी लॉस से बाहर आ जाती है और अच्छा प्रॉफिट गेन करती है और फिर भी कंपनी कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट, कोई उसको पेमेंट नहीं देती है एक्स्ट्रा वर्क के लिए, तो दिस इज इन ओबीडियंस फ्रॉम द मैनेजमेंट. ओके, सो ये डिसिप्लिन है, इसका मतलब है ओबीडियंस कैसे हमें करना है एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट का. नाउ अकॉर्डिंग टू फेवल, डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल, clear and fair agreement and judicious application of penalty. Penalty words come here कि अगर कोई काम नहीं करता है तो पेनाल्टी भी लगेगी. ओके, नाउ पॉजिटिव इफेक्ट. सो इफ एवरीवन फॉलो डिसिप्लिन, सो स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग इज पॉसिबल. Better relation, there will be a better relation between management and employees because both are obeying the organizational rules and employment agreement. What is the consequences of violation? अगर हम नहीं करते हैं फॉलो तो क्या हो जाएगा? कोई cordial relationship नहीं रहेगा, disobedience of rules and regulations. This is one example I have taken. Okay, so इसको आप समझने की कोशिश कीजिए. नेक्स्ट है आपका यूनिटी ऑफ कमांड. Unity of command, this is fourth principle.
Under this principle, Fayol said that there should be one and only one boss for every individual employee. Okay, but why is it so? If an employee gets order from two superiors at the same time, what will happen? Confusion. Okay, so the unity of command is violated. So this principle states that each participant in a formal organization should receive orders from one superior. अगर सपोज आपके यहाँ पर बहुत सारे हम बात करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने जैसा कहा डिवीजन ऑफ वर्क तो है, ओके, डिवीजन ऑफ वर्क है। डिवीजन ऑफ वर्क में 4 डिपार्टमेंट हैं, मार्केटिंग, फिनांस, प्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कौन है? सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं। ओके, तो उन सेल्स एग्जीक्यूटिव को फाइनेंस मैनेजर भी ऑर्डर्स दे रहा है, मार्केटिंग मैनेजर भी ऑर्डर दे रहा है, और दोनों के ऑर्डर अगर डिफरेंट है तो क्या होगा? दे विल बी कंफ्यूज्ड। ओके, कि वो किसकी माने और किसकी नहीं माने। तो ये प्रिंसिपल वॉयलेट होता है। अच्छा, एक एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें, एक एग्जाम्पल, सपोज इफ अ मार्केटिंग मैनेजर, ओके, मार्केटिंग मैनेजर के अंदर सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं। सो मार्केटिंग मैनेजर अलाउज सेल्स एग्जीक्यूटिव टू ग्रांट 10% ऑफ डिस्काउंट, यही होता है। ओके, सेल्स एग्जीक्यूटिव को सेल बढ़ानी है तो कुछ डिस्काउंट देना होगा, तो मार्केटिंग मैनेजर ने कहा ओके यू कैन अलाउ 10% ऑफ डिस्काउंट। अब लेकिन ये जो डिस्काउंट का मैटर है वो थोड़ा फाइनेंस में भी आता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने 10% का डिस्काउंट दिया तो सेल्स तो कम की होगी ना, सेल्स वैल्यू हमें कम मिले रिसीव होगी। तो फाइनेंस मैनेजर क्या इंस्ट्रक्शन देता है कि नो, यू कैन ऑफर ओनली 5% ऑफ डिस्काउंट। ओके, सो अब क्या करेगा? सो दिस इज लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। क्यों लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड है? दोनों डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। ओके, अगर कोऑर्डिनेशन होता तो पहले ही ये डिस्काउंट का मैटर रिजॉल्व हो जाता कि एट लास्ट डिस्काउंट देना कितना है। ओके, सो दिस इज वायलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। सो दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ऑल सबऑर्डिनेट्स शुड रिसीव ऑर्डर एंड इज अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपीरियर। एक कोई वो लिए वो अकाउंटेबल है और एक का ही वो ऑर्डर फॉलो करेगा। ओके, दिस इज द पॉजिटिव। व्हाट इज पॉजिटिव? वेरी सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई केओस नहीं होगा और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी इजीली फिक्स कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन, इसका ऑपोजिट है जस्ट, इट क्रिएट्स कॉन्फ्यूजन, केओस एंड डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ अदर प्रिंसिपल, दिस इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। पहले इसकी मीनिंग समझते हैं और फिर मैं बताती हूँ कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्यों हो जाता है। समटाइम ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड में पीपल में गेट कंफ्यूज। डायरेक्शन क्या कहता है? फर्स्ट, इट इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल all the units of an organization, okay, all the units means जितने सारे डिपार्टमेंट है सब कुछ, okay, they should be moving towards same objective through coordinated and focused effort. हर डिपार्टमेंट का अपना हेड होगा। okay, listen here, one head and one plan for group of activities. what is meant by group of activities? मतलब एक तरीके की एक्टिविटी जिसको हमने ग्रुप बना दिया है। जैसे फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी का फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। सो हर डिपार्टमेंट का अपना हेड होगा और अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे, अपने प्लान्स होंगे, है ना। हर डिपार्टमेंट का अपना प्लान होता है। लेकिन इन्हें करना क्या है कि सारे डिपार्टमेंट को दे शुड मूव टूवर्ड्स सेम ऑब्जेक्टिव। सेम ऑब्जेक्टिव क्या है? द कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, उसकी तरफ बढ़ना है थ्रू कोऑर्डिनेशन एंड फोकस्ड एफर्ट। ओके, आई थिंक आई एम क्लियर हियर। सो सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। दिस द important line is one head and one plan for each group of activities, for every group of activities. अब इसका पॉजिटिव इफेक्ट, एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज इन अ कंपनी
कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग, मोटरसाइकिल्स भी बनाती है और कार भी बनाती है, ओके। तो वहाँ पर क्या है, या बहुत सारी एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। हाँ, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल आप मेरे एग्जाम्पल के बाद आप इसको स्टडी करेंगे। मारुति, मारुति इज़ अ वेल नोन कंपनी फॉर मैन्युफैक्चरिंग कार्स, मारुति सुजुकी, ओके। मारुति सुजुकी के पास नेक्सा है, उसके पास एरीना है, एल्टो है, स्विफ्ट है, बहुत सारी कार्स हैं, ओके। ये सारी कार्स हैं, मतलब अलग अलग डिवीज़न है, क्लियर। सब डिवीज़न का अपना इंचार्ज है, उनके अपने डिपार्टमेंट्स हैं। तो यहाँ पर क्या है, हर एक डिपार्टमेंट अपनी कार को प्रमोट करेगा, ओके। हर एक डिवीज़न में ये होगा कि सेल बढ़ाई जाए, नेक्सा की सेल, एरीना की सेल, एल्टो का या स्विफ्ट का सेल इंक्रीज किया जाए। बट इनके बीच में क्या होना चाहिए, क्या क्लैशेस होने चाहिए? नो। अगर क्लैश होगा तो क्या होगा कि एक डिवीज़न तो फ्लरिश होगा बट दूसरा डिवीज़न फ्लरिश नहीं करेगा। सो इस एग्जाम्पल में हर एक डिवीज़न का अपना ऑब्जेक्टिव है, अपने प्लान है, अपना हेड है, वन हेड वन प्लान, बट दे ऑल डिविजन्स आर मूविंग टूवर्ड्स वन ऑब्जेक्टिव, दैट इज organizational objective of Maruti. I think I'm clear here. Now, what is the difference between unity of command and unity of direction? ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि बहुत confusion होता है। unity of command का मतलब क्या है कि one subordinate should receive orders from one superior and responsible or accountable to him only. But unity of direction says that group of activities having same objective must have one head and one plan, okay। हर डिवीजन का अपना हेड और अपना प्लान होगा। एंड व्हाट इज द एम इज टू प्रिवेंट ड्यूअल सबऑर्डिनेशन, ओके। दो नहीं होने चाहिए। सो यहाँ पर क्या होता है, इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज, ओवरलैप नहीं हो हमारी एक्टिविटीज एक दूसरे से। इम्प्लीकेशन मतलब यहाँ पर हर डिवीजन में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इम्प्लीकेशन क्या है, इट इफेक्ट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, है ना। अगर ये यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं होता, सो वही है, सबऑर्डिनेट विल बी कंफ्यूज्ड कि किसका ऑर्डर माने, किसका ऑर्डर नहीं माने। सो इट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। बट अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो नहीं करते हैं तो पूरा एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस स्लाइड। अभी बाकी के जो प्रिंसिपल्स हैं, 5 प्रिंसिपल्स हमने यहाँ पर कवर किए हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।